Hello everyone, welcome to this channel. So this is our first video on YouTube, and today we are going to start with class 11th physics with the chapter number 1. So this will be an introductory video, and in the today's video we will do something basics about physics. So let's start. So our first question that arises is, what is physics? So various scientists give different definitions of physics. So my personal definition, according to me, that physics is the way to understand the natural phenomena and the universe with the help of the numbers. For example, physics is an application of mathematics. जैसे कि हम मैथ्स में पढ़ते हैं इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, हायर क्लासेस में हम पढ़ते हैं वेक्टर स्पेस एंड ग्रुप्स. सो एज सच मैथ्स में इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है. मैथ में हम सिर्फ उनकी कैलकुलेशंस को समझते हैं. बट इन फिजिक्स वी हैव द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एंड जो हम वेक्टर स्पेस पढ़ते हैं, the whole vector space has application in quantum mechanics. So and groups also has an application in physics, and बहुत सारी calculations है astronomy में. In understanding the universe we use a lot of integration and differentiation. So we can say that all the application of mathematics, whatever we study in mathematics like parabola, conic section, उसका application है physics में. So and with the help of these numbers, with the help of mathematics, we understand the physics, we understand the universe, we understand how something behaves. So this is the definition of physics, that physics is the way to understand natural phenomena with the help of numbers. Or numbers, or we can say mathematics. So this is our simple definition of physics. Now the next question comes about the application of physics. I think कोई ज़रूरत नहीं है application of physics का आंसर देने की, because we all know from the middle से लेकर जो हम our cooking, our agriculture, from जो हमारे कपड़े की बुनाई होती है, from that to the even astronomy, in the quantum mechanics, from the atoms and molecules, and in the thermodynamics, and in the optical instrument like telescope, everything it is physics. And nowadays in IT sector, which I think semiconductor is the basis of IT sector, and the semiconductor में जो bonding है, जो carbon bonding है, all that thing comes from the physics. So application of physics is very very wide, and I think you should write in comments about the application of physics, whatever it comes in your mind. So now we will study about the branches of physics. So mainly the physics is divided into two branches. One is macroscopic, and the other is microscopic. As the name is self-defined, that macroscopic are in the macroscopic we study the things in the physics which we can see from our eyes. For example, classical mechanics, okay, and classical mechanics, optics, optical phenomena of light we can see from our eyes, and electrodynamics, the interaction of charges, and magnets
we studied that in electromagnets. And then, and in the microscopic, this is the older branch of the macroscopic, this is the older branch, and this is the microscopic, and this is a newer branch. For example, quantum mechanics. And it is also known as modern physics. इसको मॉडर्न फिजिक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लेट 1900s में इसका इन्वेंशन होना शुरू हुआ एंड साइंटिस्ट ने इसके बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया. सो दिस इज एंड मैनी न्यूक्लियर फिजिक्स दे कम अंडर दिस ब्रांच. So in this we study about the at subatomic level, like in electron, proton, because the laws which are valid here are not valid at microscopic level. So the whole branch was invented and the study was done under this. Now after this we will study some basic forces. Now in the physics, as all the forces, जो भी हमारे आसपास में forces पाई जाती है उनको मेजरली हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अभी हम वो 4 कैटेगरीज पढ़ेंगे कौन कौन सी है, एंड जो भी फोर्सेस हैं उनको हम इन्हीं के अंडर कर सकते हैं. सो लेट अस डू द 4 फंडामेंटल फोर्सेस. So the first is known as gravitational forces. I think I should write it up. So the first force is gravitational force. इसके बारे में हम जानते हैं जैसे कि कोई भी दुनिया में यूनिवर्स में 2 मासेस है, भले ही वो छोटे से छोटे हो एटम्स हो या फिर वो बड़े से बड़े हो लाइक गैलेक्सीज या फिर सन मून, सब पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है. ठीक है. एंड इट बिटवीन 2 मासेस एंड इट इज यूनिवर्सल. And also it is the weakest force found on the universe. Okay, so and it is also long range force, like बहुत दूर डिस्टेंस पे है तब भी ये लगेगी. इसकी रेंज हम यहाँ लिख रहे हैं इनफाइनाइट रेंज. एंड हियर वी विल राइट स्ट्रेंथ. सेकेंड आती है वीक न्यूक्लियर फोर्स. इसका नाम है वीक न्यूक्लियर फोर्स, बट एक्चुअली ये ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. सो अगर हम स्ट्रेंथ अगर हम मान के चले कि ग्रेविटेशनल फोर्स की 1 है, तो जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो उसकी 10⁻25 टाइम्स है. अब खुद सोचो कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो इतनी गैलेक्सीज को, जो इतने सन और मून को साथ पकड़ के रखती है, वो सबसे वीकेस्ट फोर्स है. एंड बाकी सब फोर्सेस तो उससे बहुत ज़्यादा पावर में बड़ी है. एंड अगर हम रेंज की बात करें तो ऑब्वियसली बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं. एंड ये कहाँ पाई जाती है, किन पार्टिकल्स में. एक्चुअली जब बीटा डिके होता है, ये हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, जब बीटा डिके होता है तब न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन निकलता है और एंटी न्यूट्रिनो निकलता है. तो उस टाइम उन दोनों में जो फोर्स पाई जाती है उसको हम वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं. एंड इसके बारे में हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे. तो जस्ट आप ये याद कर सकते हैं कि ये सब एटॉमिक लेवल पे होती है एंड इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो में पाई जाती है. इट्स जस्ट फाउंड इन द सब एटॉमिक लेवल. नाउ द थर्ड फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स.
स्ट्रेंथ की बात करें तो इट इज 10⁻36 टाइम्स दैट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इसकी जो रेंज होती है दैट इज नॉर्मल, बहुत ज़्यादा भी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा भी नहीं होती है, तो नॉर्मल रेंज वी कैन राइट इट, नॉट वेरी लार्ज। एंड ये किन में पाई जाती है, कोई भी चार्ज पार्टिकल्स हैं वो इसमें पाई जाती है। चार्ज पार्टिकल फॉर एग्जांपल 2 प्रोटॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उनमें जो पाई जाती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है। एंड नाउ फोर्स इज न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स एंड आई शुड ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स। एंड अगर हम इसकी स्ट्रेंथ लिखें तो इट इज 10⁻38 and it is very short range force। एंड ये किन में पाई जाती है, ये न्यूक्लियस के अंदर ही पाई जाती है। बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल आई विल इसको थोड़ा डिटेल में करें अगर, तो फिर जो एक न्यूक्लियस होता है उसमें बहुत सारे प्रोटॉन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो उसमें 5 प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है, व्हाटएवर, तो अगर वो प्रोटॉन पास है वैसे तो उनको रिपेल करना चाहिए, उनको बहुत दूर चले जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स वो 2 प्रोटॉन है वो पास में ही रहते हैं। एंड इट इज़ अ वेरी शॉर्ट रेंज, मतलब सिर्फ न्यूक्लियस के विदिन ही लगती है। अगर वो 10⁻⁻15 मीटर में लगती है एंड अगर उससे ज़्यादा डिस्टेंस होता है तो फिर वो रिपेल करेंगे प्रोटॉन। एंड ये जो फोर्स होती है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन सब में ही एक जैसे लगती है। तो दिस इज व्हाट अवर न्यूक्लियर फोर्सेस, दिस इज द ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस व्हिच आर गिवन इन द एनसीईआरटी। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज, सो दिस वाज द फोर्सेस एंड now the last part comes and now we will study there are some universal conservation laws in physics and which are applicable all the time. So we will now study laws of conservation. Laws of conservation. So the first law is conservation of energy. ये लॉज हमने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है। एंड व्हाट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सेज दैट the energy cannot be created, the energy cannot be destroyed, it can be transferred from one form to another। मतलब कि यूनिवर्स में जितनी भी एनर्जी है वो कांस्टेंट है एंड अगर वो साउंड में है तो मैकेनिकल में चेंज हो सकती है, मैकेनिकल में है तो किसी और हीट एनर्जी में चेंज हो सकती है, बट इट कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये बहुत ही बेसिक कंजर्वेशन ऑफ लॉ है एंड ये हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है। सो द सेकेंड इज कंजर्वेशन ऑफ momentum। So what the conservation of momentum says that if the external force is zero, it is necessary कि जो external force है वो zero होना चाहिए, तो जो सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। इसके एप्लीकेशंस भी हमने पढ़े हैं। फॉर एग्जांपल एक गन एंड बुलेट का लिया जाता है कि जब हम गन चलाते हैं और बुलेट आगे जाती है एंड जो गन है वो रिकॉइल होकर पीछे जाती है। इसमें भी यही है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, वो इंटरनल फोर्सेस ही हैं और वो एक दूसरे को कैंसिल कर दिए जाते हैं। एंड देयर इज अनदर एग्जांपल कि एक न्यूक्लियाई है एंड रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है एंड उसमें 2 पार्टिकल्स निकलते हैं। फॉर एग्जांपल ये ए न्यूक्लियाई है एंड इसमें से ये रेडियो एक्टिवली डिके हो जाती है, इनमें से 2 पार्टिकल निकलते हैं बी एंड सी। तो बी इस डायरेक्शन में जाता है एंड सी जो है वो इस डायरेक्शन में जाता है, तो जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। मतलब कि पहले ये रेस्ट पे था, दिस वाज इन रेस्ट
एंड बाद में जो इनका मोमेंटम होता है वो भी टोटल मिला के मोमेंटम ऑफ बी प्लस मोमेंटम ऑफ सी जो है वो जीरो ही रहता है, क्योंकि इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है एंड इट वाज ड्यू टू इंटरनल रीजंस कि ये जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है ये डिके हुआ बी एंड सी में. एंड नाउ द थर्ड कंजर्वेशन लॉ इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. जैसे कि लीनियर केसेस में हमारे पास लीनियर मोमेंटम होता है, वैसे ही जब कोई बॉडी रोटेशन में होती है तो फिर हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होता है. एंगुलर मोमेंटम इज इसकी मैग्नीट्यूड भी होती है एंड डायरेक्शन भी होती है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तो इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही कंजर्व रहती है. एंड the revolution of earth around the sun is one of the application of conservation of angular momentum. जो हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, इट फॉलोज द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. इसमें जो है वो एंगुलर मोमेंटम जो है कंजर्व रहता है अर्थ का, क्योंकि यहाँ पर भी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, इधर भी एक्सटर्नल टॉर्क का जीरो होना जरूरी है. यह मैं लिख देती हूँ, external force must be zero and here external torque जो है the torque is represented by tau, it is zero. Okay, now the fourth is conservation of charge. As we know that anything is made up of atoms and atoms have both positive proton and negative electron. and अगर कहीं प्रोटॉन ज़्यादा हो रहा है तो कहीं पे वो for example this is an object A, this is an object A and this is an object B. इधर भी पॉजिटिव 2 है एंड इधर भी नेगेटिव 2 है एंड इधर भी पॉजिटिव 2 है एंड इधर भी नेगेटिव 2 है. लेट अस सपोज कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से हटकर यहाँ चला गया, तो दिस होल विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रल हो गए हैं एंड एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव बच गया है. एंड यहाँ ये न्यूट्रल हो गए हैं, 2 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव एंड एक नेगेटिवली चार्ज बच गया है. तो अगर हम दिस बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड दिस बिकम नेगेटिवली चार्ज, but we see the whole system this plus and this minus become neutral. तो जो whole system है वो neutral रहेगा. same ही बात है कि charge can be transferred but it cannot be created, neither it can be destroyed. So the lecture ends here. So see you in the next video and thanks for watching this video.